idea on what was the intention of this guy. इसका intention सही था, गलत था, and what was, maybe let's check his feelings for Ankita. Not a bad idea. So that is what we're going to do in this reading, okay? So let's check the intention of this guy towards Ankita. What was the intention of this guy for Ankita? Dear angels, please tell us what was the intention of this guy towards Ankita. What do we need to know? Anything that you want us to tell about the intention of this guy towards Ankita? Anything that you want us to know? Anything that you want us to tell? इंटेंशन क्या था इस बंदे का? Hmm. God's guides, angels, archangels, spirit guides, spirit guides. Ma Durge, Ma Kali, Om Ganeshaya Namah, Jai Bajrangbali, my dear friend, the spirit of wolf, my dear guardian angels, please tell us what was the intention of Ankita, what we need to know, what was the intention of this person. Believe in scarcity, absolutely. उसने उसके insecurity को काफी हवा दिया है, काफी आग लगाया है उसके insecurity को. Surrender fear, और उसके डर को भी बढ़ाया है, absolutely. तो surrender your belief in scarcity. What was this guy's intention, हम लोग पूछ रहे हैं. Okay, so we are not thinking about his heart, we are in the brain. The brain manipulates and does all these things. So हमने पूछा है what was the intention of this guy towards Ankita, and we have got the believe in scarcity card. यानी कि ये वाला कार्ड कल भी आया था, right? तो दिस गाय बेसिकली उन अंकिता की जो भी इनसिक्योरिटीज थी सुशांत को लेके, उसको इसने बिल्कुल फ्लेयर अप किया है, हवा दिया है, उसकी इनसिक्योरिटी को और बढ़ाया है और उसके डर को बढ़ाया है. दैट सुशांत इज gone, he has become a big thing, he is out of your reach, he is not interested in you, all kind of things. Okay, so उसने अंकिता के डर को भी बढ़ाया है और उसने उसके इनसिक्योरिटी को बढ़ाया है, एंड दिस वाज हिज इंटेंशन. अगर उसका इंटेंशन नोबल होता, तो अगर उसने जो भी इम्पैक्ट किया वो गलत भी हो जाता तो अंडरस्टैंडेबल था. यहाँ पे नियत ही इस लड़के की खराब खराब थी. देख रहे हो, इंटेंशन इज, अगर इंटेंशन खराब है किसी का, अगर किसी से गलती हो जाती है तो इट्स ओके यार. अगर आप किसी को हील करना चाहते हो और आपसे गलती हो जाती है, इट इज अंडरस्टैंडेबल. एटलीस्ट उसका इंटेंशन तो सही था. इसीलिए वो जो पॉइजनस स्नेक है, वो हील करने वाला जो कार्ड था, इट्स टाइम टू हील, वो उल्टा आया था, बिकॉज ही वॉज नॉट, ही वॉज द पॉइजनस स्नेक हु बिट बोथ ऑफ देम एंड देयर रिलेशनशिप. बिकॉज उनका उसका इंटेंशन ही था कि उसके इनसिक्योरिटी को फ्लेयर अप करके उसके डर को बढ़ा दिया था उसने. And that is why this lady was acting so weird, and she was feeling so insecure, and she had become very dominating in his life, Sushant's life, which was a complete shocker for Sushant, because probably Sushant wouldn't have seen Ankita in this avatar where she's feeling so insecure, for what reasons and all that. तो ये सारी बातें हैं. Okay, and surrender to passion भी है यहाँ पे. तो लगता है कि उसे एक सुशांत अंकिता में डेफिनेटली एक इंटरेस्ट भी था, एक पैशनेट इंटरेस्ट तो डेफिनेटली है. अब उसमें कितना प्यार है ये मुझे तो कम ही दिख रहा है. गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली, फोकस ऑन द पीपल एंड एक्टिविटीज दैट इग्नाइट योर पैशन एंड लेट इट फ्लो. तो इस तरह से उसने ना उसको भड़काया है. ओके, ये कल भी मैंने ये वाला बात बताया था कि यू गो आउट. अंकिता को उसने ये वाला बात बोला होगा कि यू गो आउट, यू आर सो गुड, व्हाई यू हैव टू spoil your life because of him. If he is going out and dating other Bollywood girls, then you go out and you flare up your passion and इस तरह से चीजें. ओके, तो उसको कुछ तो उसका इंटेंशन डेफिनेटली था उसके तरफ से, पैशनेट इंटेंशन था उसका.
यहाँ पे देखिए क्या पता चल रहा है हमें. What was the intention of this guy towards Ankita? तो यहाँ से देखिए, अगर आप ये दोनों कार्ड यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कल वाला कार्ड ही सेम यहाँ पे है. तो एक आइडिया लगाया उसने, एक सोल्यूशन, तो उसकी कुछ he had something in his mind, he had some kind of destination in his mind and he was working towards that. It was not like उससे गलती हो गई गलती से, ये सब planned था because he had some sort of D date in mind कि हाँ मुझे इस तरह की, I want this kind of end result with what I'm going to do here, what I'm going to do with whatever solution I'm bringing to this relationship, whatever I'm doing, whatever जो भी आइडिया मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जो भी सजेशंस मैं दे रहा हूँ, उसका एक एंड था उसके माइंड में, एक विजुअलाइज किया हुआ था उसने. क्या क्या विजुअलाइजेशन था? एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि उसको किसी तरह से बहुत अमीर बनना था. वो अंकिता को यूज करके कैसे अमीर बनने वाला था, उसका क्या गेम प्लान था एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली वो तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली ही हैड अ एंड इन हिज माइंड. और यहाँ पे भी देखिए, he wanted to use her money, अंकिता's money, something like that. काफी पैसे बनाना चाहता था, जो भी था वो इसी तरह से इसने मैनिपुलेशन किया था अपने आइडिया से, सजेशन से उनको मैनिपुलेट करके, क्योंकि he was very clear in his head what he wanted to do. So this person is definitely not innocent. Okay, this guy is not only a backstabber but he is also a very cunning planner. यहाँ पे भी देखिए उसने क्या किया है, उसका इंटेंशन क्या था अंकिता के लिए, कि उसकी दुनिया जो थी, जो कि काफी एक अच्छी दुनिया होने वाली थी. ओके, बिकॉज मैंने कल वाले कार्ड में आपको एक्सप्लेन किया था वो टेम्परेंस वाला कार्ड, जो कि सुशांत और अंकिता जो काफी दिनों से टीवी में एक्ट कर रहे थे, सुशांत का करियर काफी अच्छा होने वाला था, काफी पैसा और मनी आने वाला था, और अंकिता सुशांत की एम्प्रेस तो थी ही. तो ये जो चीज थी ना, वो उसको बिल्कुल उल्टा करना चाहता था. दिस गाय डिडंट वांटेड अंकिता टू बी सुशांत एम्प्रेस, वो उसको उल्टा करना चाहता था. और ये जो लाइफ, ये जो दोनों का रिलेशनशिप अगर सब चीज अच्छा चलता रहता सुशांत और अंकिता का, तो they would have been flooded with all kind of money and stability and security, right? क्योंकि वो सुशांत को बॉलीवुड से काफी ऑफर्स आ रहे थे, इंडोर्समेंट्स आ रहे थे, ही वाज द बिग थिंग. नेक्स्ट ही वाज सीन एज द बिग थिंग. तो अगर उनकी रिलेशनशिप ठीक से चलती रहती जैसे चल रही थी टीवी सीरियल्स के समय में, तो उनको उनके रिलेशनशिप में किसी भी चीज की कमी नहीं होती. पैसा तो अनलिमिटेड होता, अबंडेंस, इनफाइनाइट अबंडेंस होता, सेफ्टी होता, सिक्योरिटी होता, हर चीज होता, क्योंकि वो सुशांत की एम्प्रेस थी. डेफिनेटली वो दोनों का ही साथ, इट्स उनका फॉर्च्यून, सुशांत का फॉर्च्यून, उनका फॉर्च्यून था, तो थिंग्स वुड हैव बीन सो गुड. और इस बंदे को शायद ये लगा होगा कि एक तो वो बिल्कुल अलग पड़ गया होगा, एक उसकी भी अपनी इनसिक्योरिटी थी कि ये दोनों एक साथ हो जाएंगे और मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा, क्योंकि एक थोड़ा सा पैशनेट अफेयर उसको डेफिनेटली अंकिता से था. बट मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ लव अफेयर जैसा अंकिता से था. अगर आप देखो तो ये बिल्कुल एक दिमाग में है और मनी इसके माइंड में है, और एक एंड प्लान भी जो है उसका क्या है, मनी ही है, यहाँ पे मनी ही है. तो ही वॉन्टेड टू यूज अंकिता टू बिकम रिच. तो हो सकता है कि क्या किया होगा इस बंदे ने, बेसिकली ही वांटेड टू सेपरेट अंकिता फ्रॉम सुशांत लाइफ, क्योंकि अंकिता वाज सुशांत प्रोटेक्टिव एंजल थी ना, मदरली बिहेव करती थी, उनको सब चीज पता था कौन सही है कौन गलत है, और मेच्योर भी थी, तो वो पता चला सकती थी कि ये बंदा उनको मैनिपुलेट कर रहा है या उनके पैसे को यूज कर रहा है. तो उसने क्या किया कि उसने अंकिता को ही सेपरेट कर दिया सुशांत के लाइफ से, ताकि फिर सुशांत को यूज करके मैनिपुलेट करके, क्योंकि वो लड़का था तो थोड़ा इमेच्योर, हर आई मीन सबको अपनी तरह ही अच्छा समझता था. तो एंड यूजुअली द लेडीज एंड गर्ल्स आर वेरी मेच्योर कंपेयर टू देयर एज. तो उसने क्या किया कि उसका जो सुशांत का जो एक फायर वॉल थी अंकिता, उसको ही इस बंदे ने सेपरेट किया. क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर सुशांत का सब चीज अच्छा चल रहा था और अंकिता उनके साथ रहती, तो ये बंदा उसको इतना हार्म ही नहीं कर पाता. तो इसने बहुत ही चालाकी से अंकिता का इनसिक्योरिटी को फ्लेयर किया, उसके डर को बढ़ाया,
और अपना तो जो भी इसको पैशन था थोड़ा बहुत, मैंने कि बहुत ही एक निम्न कोटि का आदमी है, मैंने बहुत ही घटिया इंसान है ये। उसको उसने बिल्कुल उसका दिमाग खराब किया। और यहाँ पे देखिए बेसिकली उनका भी जो पैराडाइज था, जो कि अगर वो दोनों साथ रहते तो यू कैन इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल द रिलेशनशिप वुड हैव बीन। नॉट ओनली दे वर आइडियल कपल, बट दे कुड हैव बीन जस्ट लव्ड बाय एवरीबॉडी विद abundance, prosperity, happiness, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज होती दुनिया में। यानी कि अगर वो एक आइडियल सच्चा दोस्त उसके लाइफ में प्ले करता ये बंदा, बट इसने ये सारा चीज ही उल्टा कर दिया, क्योंकि ये इसका इंटेंशन ही यही था इस बंदे का, और इसने अपना जो भी इंटेंशन था उसको बहुत अच्छे से उसने पाया भी है। आइडिया लगाया, ये इंटेंशन था, यहाँ पे उसने सजेशंस दिया, मैनिपुलेशन किया। और ये आप देखो ये कल वाला ही कार्ड आया है, ओके। और ये मैनिपुलेशन करके इसका क्या इंटेंशन था कि ये अमीर बन जाए। उसका एंड गोल जो था जजमेंट का, बहुत ही इसके दिमाग में क्लियर था कि इस बंदे को कहाँ पे पहुंचना है और किसका पैसा यूज करना है। बिल्कुल वो सुशांत के पैसे को यूज करके उसको मैनिपुलेट करके उसने पता नहीं क्या किया है, बट दिस इज व्हाट इट इज। So his intention towards Ankita was definitely not kind. Maybe he pretended that he is her friend, but he was a poisonous snake. ये हमें कल के रीडिंग से ही पता चल गया है। My God, this guy is a big time stabber. People should be really careful with this kind of people, what kind of people they are being friends with. Okay.